हम इस IGCSE और O लेवल के सिलेबाई का सेकेंड टॉपिक कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें बेसिक टर्म्स क्या है? एटम, हाउ टू डिफाइन एटम। The smallest and indivisible particle of elements which cannot exist freely except atoms of noble gases। नोबल गैसेस। अच्छा, ये पहले भी हम एलिमेंट्स कंपाउंड्स मिक्सचर में मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी कि नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये आखिरी ग्रुप में जो एक्सट्रीम राइट पे पीरियोडिक टेबल का है, ग्रुप 8 या 0, उसमें है। वो नोबल गैसेस हैं, उनके एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे नीड नॉट कंबाइन, इसलिए हम कहते हैं कि दे कैन एग्जिस्ट फ्रीली। अदर एटम्स दे cannot exist freely, they must combine with their own atoms or they make compounds, chemical bonding with other atoms of other elements to make compounds, or with their own to make diatomic, triatomic या polyatomic molecules। Okay, अब subatomic particles we have that exist in atoms proton, which exist या resides inside the nucleus। Neutrons which exist or reside inside the nucleus inside the nucleus। Number 3, electrons which revolves
around the nucleus in circular paths called orbits या shells. Now, characteristics of subatomic particles. Characteristics of subatomic particles. Okay. Okay, you have this table with 4 columns and 4 horizontal rows, 4 by 4. Highlighted terms: name, symbol, charge, relative mass. Then we have proton and this horizontal row for neutron, for electron. Proton symbol P, charge +1, and mass 1. What is the unit of this mass? This is neither gram nor anything else, just AMU. AMU, atomic mass unit. On the scale it is taken 1, but how? How can we measure? Should we measure it in grams? No. Should we measure it in milligrams? No. This is just 1 unit, rounded off to 1 unit, atomic mass unit. And neutron, its symbol is N, small n, no charge. We cannot say it's 0, but yet is accepted to say 0. However, 0 is also included in charge. But right now at this stage, इसको हम कह सकते हैं चलो 0 है, या इसके जगह नील लेके, ठीक है, हम इसको नील लिख सकते हैं. अच्छा, ये नील लिख सकते हैं, आप इसको लिखें, ठीक है, या 0 लिखें, लेकिन डैश लाइन लगेंगे तो दैट शुड बी कन्फ्यूज्ड विद आइदर नेगेटिव, या तो फिर बिल्कुल इसको खाली डैश बड़ा थोड़ा सा खींचें, इसको लेंथ करें. मास इसका भी 1 है. ऑलमोस्ट दीज टू आर इक्विवेलेंट इन मास. इन दोनों के मास इक्वल हैं, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, लेकिन राउंडेड ऑफ टू इक्विवेलेंस. इलेक्ट्रॉन symbol E, charge -1. This is very important. The mass is 1840. 1 divided by 1840. इसका क्या मतलब है? When you divide 1 into 1 by 1840, 1 divided by 1840, it means that it is extremely small. 1 divided by 1840, 1840. So it is
1840 times smaller than the mass of a proton or neutron. आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम 1840 इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह कर लें, इकट्ठा कर लें, तो ऑल टुगेदर देयर मास वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन. तो यानी एक साइड पे एक प्रोटॉन होगा, दूसरी साइड पे आप 1840 इलेक्ट्रॉन्स रखें तो तब जाके उनके मासेस बराबर होंगे, इक्वल होंगे. ये इतना एक्सट्रीमली स्मॉल है. अच्छा, अब इसके बाद हम जाते हैं बाकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसमें. वो ये है कि प्रोटॉन नंबर, या इससे भी पहले हम जाएंगे पार्ट्स ऑफ atoms. You need to understand parts of atoms. Parts of atoms. Yeah, only atom. Number one. Nucleus. It is the central part in which neutrons and protons are residing. In the central part, it is positively charged. It is positively charged. Reason? Protons and neutrons yani neutrons and protons are living inside the nucleus. So while the charge on proton is +1 and that on neutron is 0, so overall it is positively charged. So one central area of the atom is positively charged. Yes. Inside that is the nucleus containing proton and neutrons. Second part of the atom is orbits or shells. What are these? These are circular paths in which electrons revolve around the nucleus.
न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि ऑर्बिट्स एंड शेल्स और द imaginary circular lines surrounding the nucleus. But it is not just circle, it is spherical. These are spherical regions. Consider an atom like a ball, and the inside of this ball lying a tiny spherical nucleus, and the outer part of this ball is the electron regions, that is the shells and orbits. Now I can relate the model of this this is one supposed to be containing proton, electron, and neutron. This is one orbit, second orbit, third orbit, third orbit. Now, this first orbit can be designated as 1 or K, the English letters, capital letters K. This is 2 or L. This is 3 or M. The fourth one would be capital N, and so on. These are called shells. Nucleus, shells. E for electron. We are not going to place the specific number of electrons, but just to relate it. E for electrons. It is not the specific number. Okay. This is the atomic model, the structure, the model of an atom, atomic model we can say, model of atom. अच्छा, अब आते हैं इसकी तरफ प्रोटॉन और atomic number. What is this?
Proton or atomic number. The number of protons in the nucleus of an atom प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इट्स अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी. क्यों बेसिक है भाई? कैसे? हर गाड़ी का, हर घर का और हर इंसान का एक कोड होता है. कोड इंसानों का अगर ये हम अपनी लाइफ में देखें, जो इसका आईडी कार्ड है, स्कूल में बच्चों का रोल नंबर है, वो भी एक कोड है. क्लास में रोल नंबर है, वो वही उसका नंबर होता है. ठीक है ना? फिर एग्ज़ाम जब लेता है तो वो उसका कोड होता है. एग्ज़ामिनेशन नंबर अपना एक अलॉट होता है. उसी नंबर पे जो बच्चा आएगा, रिज़ल्ट उसी का उसी नंबर पे आएगा. ठीक है? फिर गाड़ियों के नंबर्स हैं, कोड है कि जिस गाड़ी का जो नंबर है वो उसी शहर में किसी दूसरी गाड़ी का नहीं है, उसी मुल्क में किसी दूसरी गाड़ी का नहीं है. ठीक है? इस तरह ये कोड बहुत नेचुरल है, प्रोटॉन नंबर से है. ये आईडी है, आइडेंटिटी. ठीक है ना? इट्स द आईडी of elements are positioned in the periodic table according to proton number. Proton number is designated by capital Z. ओके, यहाँ पर मैंने लिखा, शुरू में नहीं लिखा था. इट इज़ डिजिग्नेटेड बाय कैपिटल Z. ये अच्छा, हाउ टू राइट द प्रोटॉन नंबर. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सिंबल लेके ये कोई सिंबल है, इसको हमने कंसीडर किया X. ये सिंबल है किसी एलिमेंट का. वी विल राइट Z हियर, कैपिटल Z. By this proton number we represent the element, that this is the position, this is the proton या atomic number of this element. When you look at the periodic table, we can easily relate its position, the position of any element. अब इसके साथ जो बहुत बेसिक है ये टर्मिनोलॉजी, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, और सेकंड है उसका mass
और nucleon number, or simply nucleon. What is this? What is this? This is designated, denoted by capital A, which we call the mass number of the nucleon. What is this? It is the sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom. Proton plus neutron. This is called mass number or nucleon number. Mass number or nucleon number. This is designated. So very important. एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स ये बात याद रखें, पहले डिफिनेशन एटम का, अब ये आपने उधर भी पढ़ा, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर में भी पढ़ा, यहाँ पर भी पढ़ा, ये डिफिनेशन है. समटाइम ये भी आ जाता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, आगे आपको लिखना होगा या वो फिल इन द ब्लैंक दिया होगा या कोई 2-3 वर्ड्स गिवन होंगे, उसमें आपने उसको देखना है कि वो एटम है. But the smallest particle of a compound, the smallest particle of a compound, तो वो मॉलिक्यूल होता है. ये भी एक क्वेश्चन कहीं आप देख लेंगे, पास पेपर में गुजरा है. अच्छा, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर. अब आप दोबारा उसकी तरफ आ जाएं कि ये जो ऊपर मैंने ये किया है कि सिंबल रिप्रेजेंट किया है, एक्स एक सिंबल है ऑफ एनी एलिमेंट, जी हम कहाँ लिखते हैं, उसके एज आ सबस्क्रिप्ट, और उसके सुपरस्क्रिप्ट हम लिखेंगे ए. ए तो ये ए जो है ये मास नंबर है, ये मास नंबर है, और ये जो जी है ये है प्रोटॉन नंबर. प्रोटॉन नंबर. ओके, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली neutral explain why. ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. दूसरा एक क्वेश्चन है, almost
all the mass of an atom is concentrated or accumulated in the nucleus. Again, explain. इसको भी एक्सप्लेन करें. कैन यू डू दिस? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप इसको कर सकते हैं? अच्छा, ये ऊपर से जो आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी. पहला एक टेबल आपने देख लिया कि जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, सिंबल्स, चार्जेस एंड रिलेटिव मासेस. तो मास तो इलेक्ट्रॉन्स के मास नेग्लिजिबल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ये हेवियर पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस में होते हैं, एंड बोथ दीज रिजाइडिंग इनसाइड द न्यूक्लियस. इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आउटसाइड में होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर स्फेरिकल या सर्कुलर स्फेरिकल पाथ्स में होते हैं, जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, और उनका मास नेग्लिजिबल है. दैट्स वाई वी से दैट द होल मास या all the mass of an atom is accumulated or concentrated inside the nucleus. ये इसकी explanation हो गई. क्या हो गया कि since electrons are in the orbits or energy shells or energy level या shells and outside the nucleus, their masses are extremely small and negligible, and the heavier particles, proton and neutrons, are living inside the nucleus. That's why the whole mass of the nucleus, the whole mass of the atom is accumulated or concentrated inside the nucleus. This is what the explanation can be. Explanation ये होगा. अच्छा, ऊपर का जो दूसरा क्वेश्चन है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई. इसकी आपको मैंने इतना टाइम दिया, बाय देन यू मस्ट हैव made your own answer, produce your own answer, but it's up to you. वो ये है कि आपने फिर वही टेबल की तरफ जाना है. प्रोटॉन्स, और एक चीज़ जो मैंने वहाँ पर मिस की है, नहीं बताया, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर. यहाँ पर अगर मैं प्रोटॉन नंबर में आपको बताऊँ कि प्रोटॉन नंबर क्या कहते हैं कि in atoms, protons and electrons are equal in number. ठीक है, this is just to remember about. You can remember this point. अच्छा, तो to answer this question, atoms are electrically neutral, explain why. What your explanation should be? You will say, since protons and electrons are equal in number, and the unit charge on one proton and the unit charge on one electron are equal but opposite
one is positive, the other is negative, so cancelling each other. So the total number of negative charges equal to the total number of positive charges, and both cancel each other. The net effect is zero. Neutrality. That's why atoms are neutral. Just make two things. Proton and electron are equal in numbers, and their charges are unit and equal. Cancel each other. बस ये आपने लिखना है जिस तरह आप इसके लिए सेंटेंस लिखे. ये भी पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, आए हैं इसमें. अब इसके बाद वी मूव टू आइसोटोप्स. To isotopes. एक डेफिनेशन आपने शुरू में पढ़ा था एलिमेंट्स का और फिर उसके एटम्स का, कि एलिमेंट इज समथिंग प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which cannot be split into two or more simpler substances, and whose all particles that we later on called atoms are chemically identical. अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है आइसोटोप्स की. तो आइसोटोप्स में आप ये पढ़ेंगे कि जी आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट्स के एटम्स हैं और वो डिफरेंट हैं. दैट वुड बी अ कंट्राडिक्शन फॉर यू कि जी ये तो गलत बात हो गई, ये तो दो बातें हैं एक चीज़ के बारे में गलत हो गई. एक तरफ हम कहते हैं कि जी किसी एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, और फिर हम यहाँ आइसोटोप्स की बात करते हैं कि वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं और वो डिफरेंट होते हैं. लेकिन नहीं, ये बात ठीक है कि वो डिफरेंट होते हैं. और वहाँ जो हमने बात की थी कि एटम्स आर आइडेंटिकल, कौन सी बात की थी? हमने कहा था वहाँ पे कि एटम्स आर केमिकली आइडेंटिकल. तो केमिकल आईडी किया है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना. वो ये है कि प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन सबकी इक्वल होते हैं, और इस वजह से हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर और इसके साथ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ये देख ले, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. किसी एटम के प्रोटॉन्स सबके इट्स इक्वल फॉर ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. किसी एटम के तमाम एटम्स के प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, एंड सेम फॉर इलेक्ट्रॉन्स. ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ही इक्वल होते हैं. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती हैं. किसी एटम ने बॉन्ड बनाना है, किसी ने दूसरे के साथ कंपाउंड बनाना है, अपने जैसे एटम्स के साथ कोई केमिकल बॉन्ड बनाना है, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट, व्हाट्सोएवर, आगे पढ़ेंगे. तो वो प्रॉपर्टी उसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से. प्रोटॉन्स नंबर सेम है, सो इलेक्ट्रॉन सेम है. सो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, और केमिकल प्रॉपर्टी में हम इसको कहते हैं. दूसरी बात ये है कि न्यूक्लियन
या मास नंबर जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का होता है, दिस कैन बी different. When this is different, we say atoms are called isotopes. अब देखें, न्यूक्लियन या मास नंबर डिफरेंट है। जो मास नंबर डिफरेंट है, न्यूक्लियन नंबर डिफरेंट है, ये किस वजह से डिफरेंट है? प्रोटॉन तो सेम होते हैं, क्यों? मास या न्यूक्लियन इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको हम मास न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। अगर ये डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, तो उसमें डिफरेंट क्या चीज़ होती है? डिफरेंट उसमें जो चीज़ आ रही है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसकी वजह से आप अब आइसोटोप को डिफाइन करें, ठीक है। अब आइसोटोप्स की डिफिनेशन करें, ठीक है। सो isotopes are the atoms of the same element having same proton number, but different number of neutrons or mass number or nucleon number. So you can say कि इसमें क्या क्या चीज़ सेम है? प्रोटॉन नंबर, सेम प्रोटॉन नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर इज डिफरेंट। ये मास नंबर डिफरेंट क्यों होता है? ये ऊपर मैंने समझा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये इस वजह से डिफरेंट होता है। न्यूक्लियन नंबर, मास नंबर किस चीज़, न्यूट्रॉन से डिफरेंट होता है। ये होते हैं आइसोटोप्स। अब किसी एलिमेंट की 2 आइसोटोप्स हो सकते हैं, 3 आइसोटोप्स हो सकते हैं, 4 आइसोटोप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर उनका जो अमाउंट है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस और परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस, मसलन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स आपको दूंगा कि इनकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स। पहले हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की एग्जाम्पल लिखते हैं। हाइड्रोजन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन हैज 3 isotopes.
Number one, protium, which is symbolically represented by capital H. By now you are familiar with these letters, digits which I put with the symbol capital H, 1 1. इसका मतलब है कि इसका प्रोटॉन 1 है, इसका मास नंबर 1 है. अच्छा, और इसकी परसेंटेज नेचुरली ये एग्जिस्ट करता है 99.985%. It is not 100% mathematically we can. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मेमोराइज़ करें, नहीं. अगर किसी को ये याद हो सकता है तो ठीक है, याद नहीं हो सकता तो वो आपको हमेशा क्वेश्चन के साथ उसका डिफरेंट आइसोटोप्स और डिफरेंट उसका परसेंटेज व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट समथिंग, ठीक है. तो उसके लिए आपको आइसोटोप की डेफिनेशन आप याद रखें, बस वो काफ़ी है, ये याद करने की चीज़ नहीं है. सेकेंड, इसको आप देखें तो आइसोटोप्स की ये देखें, ड्यूटेरियम, it is represented by capital D. Again, I am writing some digits there. You will see the difference. It is 0.01, 0.0015. Its percentage abundance in nature is 0.05. Number 3, tritium or tritium, some people call it tritium. कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको. ये है आर्टिफिशियल एंड रेडियो एक्टिव. बाद में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो एक्टिव का क्या मतलब है, ठीक है. अच्छा, एक चीज़ इन तीनों में आप कॉमन देखेंगे, 1 1 1, ये है प्रोटॉन नंबर. फिर ये 1 2 3, ये है मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर. The thing which is common in these three is the proton number. It means they all have equal number of protons. So proton is the ID. That is why all three belong to the element hydrogen. Similarly, their number of electrons are same. Each one is having one electron and one proton. But masses are different. Masses are different. Similarly, when you can calculate the electron in this. Electron in this 1, proton 1. And what is neutron? Neutron 0. क्यों? इसका मास नंबर 1 है, जो प्रोटियम है, इसका मास नंबर 1 है. तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन है,
तो मास नंबर में क्या चीज़ होगी? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन 1 है तो 0 होगा। अच्छा, ये आपको ये आएगा। अब ये देखें ड्यूटेरियम का, ड्यूटेरियम का देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1। हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 1। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 1. 2 माइनस 1 1। किस तरह? ये 2 क्या है इसका, ड्यूटेरियम का? अब देखें इसको, ये है, ये तो मास नंबर से प्रोटॉन नंबर को माइनस करेंगे, वी गेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये पहले मैं समझा चुका हूं। आप ये लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए माइनस जी। ये साइड पे इधर आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जी, ए माइनस ए माइनस जी। अच्छा, अब देखें ट्रीशियम में या ट्रीटियम में इलेक्ट्रॉन ट्रीशियम में इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 2। अब आप तीनों में देख लें, पहले में 0 न्यूट्रॉन, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन, थर्ड में 3 न्यूट्रॉन्स। एक चीज़ ये याद रखें। तीसरी बात यहाँ पर एक मैंने आपको बताई है, आप कंफ्यूज होंगे कि ये मैंने लगा कि आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि आप जाके ख़ुद बना सकते हैं इसको। हाँ, कोई जाके कोई मैन्युफैक्चर करेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कोई। हम इसको कहीं पर बना नहीं सकते। हाँ, दिस हैज़ बीन ट्रेस्ड, this can be traced, its existence has been revealed कि it does exist during nuclear reactions। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस आप कभी फिज़िक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री में नहीं है, फिज़िक्स की तरफ आप जाएंगे पढ़ेंगे। एक चीज़ ये इधर रखें। दूसरी चीज़ अबाउट आइसोटोप्स, मैं आगे क्लोरीन की भी एग्जांपल्स दूंगा आपको। आइसोटोप्स के बारे में एक और चीज़ रिमेंबर करें कि आइसोटोप्स have similar chemical properties but different physical you can say their chemical properties are same but physical properties are different. Anyway, you can just make this your point. We will continue inshallah.